Welcome back, students. This is Dilawar Wani. First of all, I welcome you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As all of you know that because of due to COVID-19, and we all are facing a lot of and tremendous problems, and that is why because of these circumstances, because of COVID-19, we have started video classes and this material through this portal, and I hope that all the students who will watch this video later on and will get benefit from it. Okay, let us start. This is our third class and I'm your English teacher, and we will start. Okay, I will do reading. In the unsettled, we have done it. According to legends, Polo came to central Ladakh from neighboring Baltistan, where for centuries it used to be the chief amusement. Historians date the introduction of polo in Ladakh to King Jamyang Namgyal's reign in the 16th century, who married Gail Khatun, a princess from Baltistan. Others said that it was brought by the colony of Baltic settled at Chashot. Chashot got its own polo ground where every year on 21st March polo is played to celebrate Nowruz. Polo in Ladakh is not exclusively for the rich. Almost every village has its polo ground called Shagaran, and it is played with verve in many places besides Leh, especially in Dras and Chashot, a big village close to Leh. Singhi Namgyal, the king of Ladakh, laid the first royal polo ground in the Matsi Garden below Leh in the 17th century. The present polo ground in Leh is in the center of the city. Today in Ladakh, polo is more than a game. It is part of the cultural heritage. The game draws huge crowds with people donning their traditional colorful costumes. Ladakh polo, fast and furious, is a test of human endurance, skills and horse strength to play continuously. Unlike modern polo, the matches are played in the late afternoon. Okay. अब हम इसका माने समझेंगे कि जो हमने आज पढ़ा है. तो according to legends, polo came to central Ladakh from neighboring Baltistan. तो कहा जाता है, जब हम किताबें पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमें मालूम होता है कि ये जो पोलो लद्दाख में पहुंचा है, ये पहुंचा है फ्रॉम नेबरिंग, जो हमारे हमसाया एरिया है, इलाके हैं, वहां से आया है, यानी कि बाल्टिस्तान से. बाल्टिस्तान से पोलो पहुंचा है कहां पे? लद्दाख में. where for centuries it used to be the chief amusement. कहते हैं कि बाल्टिस्तान में सदियों तक ये एक बहुत ही अच्छा गेम रहा है, जहां पे लोगों ने, ये वहां पे एक तफरीह रहा है, ये वहां पे लोगों का एक अच्छा खेल रहा है, जो लोग वहां पे खेलते थे बाल्टिस्तान में. बाल्टिस्तान से जो पोलो है ये आया है लद्दाख. Historians date the introduction of polo in Ladakh to King Jamyang Namgyal's reign in the 16th century. कहते हैं, जो हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि ये जो पोलो है ये लद्दाख में आया है. कब आया? हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो लद्दाख, ये जो पोलो है ये लद्दाख में आया है 16th सेंचुरी में. ये एक बादशाह ने लाया जिसका नाम था जमयंग नमग्याल. उसकी जब उसकी हुकूमत थी उस दौर में, कैसे पढ़ते हैं,
इन द 16th century who married गेल खातून a princess from बल्तिस्तान। कहते हैं कि 16th century में जो लद्दाख है इसका एक बादशाह रहा है जिसका नाम था जमयेंग नमग्याल। उसकी दौर हुकूमत में उसने उस जमाने में जो बल्तिस्तान है, बल्तिस्तान की शहजादी से शादी की जिसका नाम था गेल खातून। तो उसी पीरियड में ये जो खेल है, पोलो है, बल्तिस्तान से लद्दाख पहुंचा। Others say that it was brought by the colony of Balticus settled at Chashot। कुछ लोग जो कहते हैं कि ये एक इलाके से आया है, एक बस्ती से आया है जो चशोट में है। Others say that it was bought by the colony of Balticus settled at Chashot। दूसरे कहते हैं कि ये कुछ लोगों ने लाया है जो आज कहां पे सेटल्ड है, चशोट में। ये लद्दाख में एक इलाका है, ये उन्हीं लोगों ने लद्दाख में लाया। Chashot got its own polo ground where every year on 21st March polo is played to celebrate Nowruz। चशोट एक इलाका है लेह में, लद्दाख में। तो वहां पे कहते हैं कि वहां पे जो चशोट है उसका एक अपना पोलो ग्राउंड है और हर रोज 21 मार्च को जिस दिन नवरोज होता है उस दिन वहां पे चशोट में ये पोलो खेला जाता है। पोलो इन लद्दाख इज नॉट एक्सक्लूसिव फॉर रिच। कहते हैं कि जो पोलो है, तो हमने पहले आपको समझाया पढ़ाया कि ये जो पोलो है ये रहा है बादशाहों का खेल, मगर लद्दाख में ये बादशाहों का खेल नहीं है, लद्दाख में रिच पीपल्स का खेल नहीं है। लद्दाख में ये पूरे जो लद्दाखी वहां पे हैं, चाहे वो पुअर हैं चाहे वो रिच है, सबका खेल है। अच्छा, ऑलमोस्ट एवरी विलेज हैज इट्स ओन पोलो ग्राउंड कॉल्ड शंगरन एंड इट इज प्लेड विद वर्वी इन मनी प्लेसेस बिसाइड्स लेह। कहते हैं कि लेह के अलावा लद्दाख में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे पोलो बड़े जोश खरोश से खेला जाता है। स्पेशली इन कहां पे, खासकर द्रास एंड चशोट। द्रास और चशोट में ये क्या है, ये दो गांव हैं, अ बिग विलेज क्लोज टू लेह। द्रास एंड चशोट ये बड़े गांव हैं वहां लेह के पास। वहां पे बड़े वर्वी के साथ, बड़े जोश और खरोश के साथ ये पोलो वहां पे खेला जाता है। सेंगिन नमग्याल, द किंग ऑफ लद्दाख, लेड द फर्स्ट रॉयल पोलो ग्राउंड इन द मर्सी गार्डन बिलो लेह इन द 17th century। कहते हैं लेह के नीचे एक इलाका है, तो वहां पे क्या है, एक लद्दाख के एक बादशाह था जिसका नाम था सेंगिन नमग्याल। तो कहते हैं कि उसने 17th century में वहां पे पोलो ग्राउंड की बुनियाद डाली। इन दिस मर्सी गार्डन बिलो, जो मर्सी गार्डन है वहां पे, जो बिलो लेह के नीचे है, वहां पे एक मर्सी गार्डन है। वहां पे जो 17th century में जो सेंगिन नमग्याल था लद्दाख का बादशाह, उसने वहां पे पहला रॉयल पोलो ग्राउंड बनाया है। द प्रेजेंट पोलो ग्राउंड इन लेह इज इन द सेंटर ऑफ द सिटी। जो आज का जो लेह में जो प्रेजेंट जो ग्राउंड है, पोलो ग्राउंड है, वो सिटी के सेंटर में है। टुडे इन लद्दाख पोलो इज मोर देन अ गेम। जो आजकल जो लद्दाख में है इसको बड़ी कदर होती है, यानी कि लद्दाख में जो पोलो है ना, इसको एक गेम नहीं समझा जाता, बल्कि इट्स अ पार्ट ऑफ हेरिटेज। वहां पे जो पोलो है ये उनके जो कल्चर है उनका एक हिस्सा बन चुका है। इट्स पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। ये वहां के जो लद्दाखी लोग हैं, ये उनका जो कल्चर है उसका एक हिस्सा है। द गेम ड्रॉज ह्यूज क्राउड्स विद पीपल डनिंग देयर ट्रेडिशनल कलरफुल कस्ट्यूम्स। तो वहां पे जो जब ये खेल खेलते हैं, जिस दिन खेलते हैं, तो सारे के सारे लोग वहां पे जो उनका जो ट्रेडिशनल जो कपड़े होते हैं, कस्ट्यूम्स होते हैं, जो लिबास होता है, वो पहन के आते हैं और वहां पे जाके फिर वो ये जो जब यहाँ पे ये पोलो खेल खेला जाता है, सब लोग वहां पे अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में आते हैं। लद्दाख पोलो फास्ट एंड फ्यूरियस, इसको कहते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस। जो लद्दाख के पोलो है ये फास्ट है और फ्यूरियस, यानी कि ये बहुत तेज खेल है। इसलिए इसको देखने में बहुत मजा आता है और खेलने में तो आता ही आता है। इज अ टेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस। कहते हैं लद्दाख पोलो फास्ट एंड फ्यूरियस इज ए टेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस, स्किल्स एंड हॉर्स स्ट्रेंथ टू पे कंटिन्यूअसली
टू प्ले कंटिन्यूसली। कहते हैं कि ये जो पोलो है, ये मैंने पहले बताया आपको, ये घोड़े के पेट पर बैठकर इसको लगातार खेला जाता है और ये बहुत ही तेज गेम है और ये बहुत ही खतरनाक खेल है और इसमें इंसान के पास बहुत सारे स्किल्स होनी चाहिए। अनलाइक मॉडर्न पोलो, द मैचेस आर प्लेड इन द लेट आफ्टरनून। कहते हैं कि ये जो लद्दाख में है कि वहां पे जो मैचेस हैं वहां पे खेले कहाँ जा रहे हैं, वहां पे आफ्टरनून में खेले जा रहे हैं। तो जो बाकी जो बाकी इलाके हैं, जो बाकी की दुनिया के जो बाकी हिस्से हैं, वहां पे तो इसकी टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है, मगर लद्दाख में जो पोलो है वहां पे ये आफ्टरनून में ही खेला जाता है। थैंक यू।